Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. Hello everyone. Today we are going to discuss on neonatal jaundice, which is very important from the clinical point of view. So let's discuss about that today. तो जब भी हम बात करते हैं जॉन्डिस की तो तीन टर्म्स आती हैं. एक होती है हाइपरबिलिरुबिनीमिया, सेकंड है जॉन्डिस और थर्ड है इक्टेरस. इक्टेरस हम कब कहते हैं? जब जो बिलिरुबिन है हमें आईज के स्क्लेरा में नजर आना शुरू हो जाता है, जब स्क्लेरा स्टेन होना शुरू हो जाता है, येलो स्टेनिंग होती है, देन इट इज टर्म्ड इक्टेरस. क्योंकि जो स्क्लेरा है दैट इज वेरी वाइट, तो वहां पे येलोइश डिस्कलरेशन बहुत इजीली दिख जाता है. और सेकंड जो स्क्लेरा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है हमारा एक प्रोटीन, दैट इज इलास्टिन प्रोटीन. तो इलास्टिन की हाई एफिनिटी होती है टू बाइंड विद बिलिरुबिन, तो इसलिए जो स्क्लेरा है वो बहुत ज़्यादा येलो नज़र आता है और अर्ली येलो डिस्कलरेशन होती है स्क्लेरा की, दैट इज कॉल्ड इक्टेरस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपरबिलिरुबिनीमिया, एज द नेम suggest itself, hyper means increase, bilirubinemia means bilirubin in the blood. So whenever there is increase in the bilirubin in the blood, then it is termed hyperbilirubinemia. जो भी एक नॉर्मल रेंज होती है हाई बिलिरुबिन की, जब उससे इंक्रीज कर जाता है बिलिरुबिन लेवल, तब उसे हम हाइपरबिलिरुबिनेमिया कहते हैं. एंड जॉन्डिस इज टर्म्ड जब हाइपरबिलिरुबिनेमिया की वो स्टेज आती है जब सेल्स स्टेन होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स में कलरिंग आना शुरू हो जाती है येलो कलर की, और हमें जो जॉन्डिस है वो नजर आना शुरू हो जाता है ऑन द पर्सन जिसका भी बिलिरुबिन रेज्ड है. मींस जब हम उसे ऑब्जर्व कर सकें, जब हमें एक सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन मिले बिलिरुबिन की, जिससे कि उसके जो बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी टिश्यूज और स्किन वो हमें येलो नजर आना शुरू हो जाए, देन इट इज टर्म्ड एज jaundice. So jaundice is the yellowish discoloration of the body, the tissues and the fluids as a result of excessive level of bilirubin in the blood. And this jaundice occurs in approximately 60% of term babies and 80% of preterm babies. Preterm babies are more prone to this because of preterm immature nature of the body. Third important thing which we have to remember, that clinically jaundice is said when serum bilirubin is more than 5 milligrams per dl, which I have already discussed with you, that earlier is the stage of hyperbilirubinemia. But when we say it is jaundice, when bilirubin reaches up to 5 milligram per dl in infants, because that margin of bilirubin is visible in the body. तो इससे पहले कि हम बिलिरुबिन की पूरी मेटाबॉलिज्म देखें, हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, सेकंड इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, थर्ड इज यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकुरोनिक एसिड ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज, या फिर आप इसे सिंपल ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज भी कह सकते हैं. एंड MRP2 प्रोटीन, दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन 2. इनका आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये समझ आएगा तभी पैथोजेनेसिस में, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आएंगी, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड all the diseases, basic bilirubin metabolism. We should be aware of these terms. So conjugated bilirubin is a kind of bilirubin which is combined with glucuronic acid. जब भी बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ जुड़ता है तब हम उसे क्या कहते हैं? conjugated bilirubin. So one thing this is we have to remember, and this type of bilirubin is water soluble, right? So and this type of bilirubin is water soluble, so it is easily excreted through the body. Second is unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin is the kind of bilirubin which is formed just after the dissociation of RBCs. RBCs जैसे ही destroy होते हैं उसके बाद जो ultimate result निकलता है, that is unconjugated bilirubin, and this bilirubin can be free bilirubin or it can be bound with albumin. Okay, and this kind of bilirubin is lipid soluble. It is lipid soluble, so it remains inside the body. It is not excreted through the body cells because its size is also large. It remains inside the body. And second thing very important is it is toxic, and because of its toxic nature it is risky to the babies. Okay, so it is toxic, so we have to protect us from the unconjugated bilirubin, right? Whenever unconjugated bilirubin is forming inside our body, we have to remove this kind of bilirubin to protect our body.
जनरली भी नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा बिलिरुबिन तो बनता ही है, डेली आरबीसीज मर रहे हैं, डेली बिलिरुबिन बन रहा है और डेली हमारी बॉडी उस बिलिरुबिन को बाहर निकाल रही है। तो जो भी बिलिरुबिन बनता है दैट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और हमारी बॉडी, हमारा जो लीवर है वो एक प्रोसेस के थ्रू बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो सारा प्रोसेस करके उस बिलिरुबिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। बट जब ये ज्यादा बनना शुरू हो जाता है तब पैथोलॉजी क्रिएट होती है। What is UGT? This is glucuronide transferase enzyme. This is the enzyme which helps in the conjugation of unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin, once conjugated, is termed as conjugated bilirubin. And the enzyme which helps in this is UGT, that is glucuronide transferase. और conjugation में क्या होता है? Glucuronide transferase ग्लूकुरोनिक एसिड को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ जोड़ता है जिससे कि वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द बॉडी. Last important thing is multi-drug resistance associated protein. This is the protein which helps in the excretion of the conjugated bilirubin from the hepatocytes into the glandular secretory system of the liver, right? तो ये एक चीज है जो वॉल में, हिपेटोसाइट्स की वॉल में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बाहर निकालने में हिपेटोसाइट्स के. ये एक चीज थोड़ी सी एनाटॉमी हमें आनी चाहिए कि जैसे ये हिपेटोसाइट है, फॉर एग्जांपल दिस इज हिपेटोसाइट. अब सेल्स में बहुत सारे हिपेटोसाइट्स हैं ऐसे ही, राइट, पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हिपेटोसाइट्स पड़े रहते हैं और ये हिपेटोसाइट्स दूर दूर होते हैं, है ना, इनमें गैप्स रहता है. ये आपने याद रखना है. तो हिपेटोसाइट्स के एक साइड से क्या जाती है, ब्लड वेसल्स, राइट, और एक साइड पे हिपेटोसाइट का क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, राइट. हिपेटोसाइट यहां से सारी चीजें लेगा, उनको मेटाबोलाइज करेगा अपने सेल में, एक प्रोसेस होगा, टोटल प्रोसेस चलता है, और फिर जो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है उसे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में ड्रेन कर देता है. और यहां से फिर ये ड्रेन होके सारा कहाँ चला जाता है, बाइल डक्ट में, राइट, हिपैटिक डक्ट में. हिपैटिक डक्ट किसके साथ जुड़ती है, सिस्टिक डक्ट के साथ. सिस्टिक डक्ट कौन किसकी होती है, गॉल ब्लैडर से. वहां से क्या आता है, बाइल. बाइल और ये सारा कंबाइन करके क्या बना देता है, एक बाइल डक्ट बन जाती है. फिर बाइल डक्ट जाकर क्या बना देती है, पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ती है जिससे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बन जाती है. फिर उसके बाद वो जाके ड्यूडेनम में जुड़ जाता है और वहां पे जाकर वो उसको ड्रेन कर देता है. तो ये सारा इस तरह से हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, किसमें, ड्रेन आउट हो जाता है जाके हमारे इंटेस्टाइन में. तो ऐसे ही करते हैं सारे हिपेटोसाइट्स काम. यहाँ पे अलग तरह के रिसेप्टर्स रहते हैं और यहाँ पर अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे MRP2 रहता है जो कि एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को. सो टॉकिंग अबाउट द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन. जो बिलिरुबिन है वो कहाँ बनता है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, आरबीसीज से बिलिरुबिन बनता है. हमारे रेड ब्लड सेल्स जो डाई कर जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, राइट, थ्रू द प्रोसेस इरिथ्रोपोइसिस. इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को. एंड नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ ए आरबीसी इज 120 डेज. 120 डेज के बाद कोई भी आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट. अब आरबीसीज क्या होते हैं, दीज आर ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता. अब न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसीज आर नॉट एबल टू फॉर्म देयर न्यू प्रोटीन्स. तो उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स होती हैं वो 120 डेज तक काम करती हैं, उसके बाद वो डीनेचर हो जाती हैं. जब उनकी डीनेचरिंग होती है तो आरबीसी की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ऑफ चेंजिंग शेप so that it can pass easily through any kind of pathway, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी खत्म हो जाती है. जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है उस टाइम जब आरबीसी ऐसी कंडीशन में जब स्प्लीन से पास करता है, when it passes through the spleen it gets stuck over there, वहां पे जाकर फंस जाता है वहां के कैपिलरीज में. वहां पे फिर क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, राइट. दे एक्ट ऑन दैट आरबीसी एंड डिसरप्ट इट. अब कोई भी आरबीसी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स. ओके, एनी आरबीसी इट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स, सॉरी साइटोप्लाज्म, राइट. यही होता है किसी भी सेल में. अब सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड
proteins. Remember this, cell membrane is made up of lipids and proteins. Lipids when denatured they form fatty acids, right? Lipids when denatured they form fatty acids. Fatty acids are utilized by the macrophages again. When we talk about proteins, they are converted into amino acids and amino acids are again used by the macrophages, right? तो इस तरह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको पूरा यूटिलाइज कर लिया सेल ने, राइट? ये खत्म होगी सेल मेम्ब्रेन, राइट? इट इज फिनिश नाउ. टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं जो बेसिकली वेरी कॉमनली मिलती हैं आरबीसीज में. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड hemoglobin pigment, right? Proteins again form amino acids and they are utilized by the body. And talking about hemoglobin, we will talk about it in detail. अब hemoglobin को क्या होता है? जब ये hemoglobin, यहाँ मैंने पिक्चर में भी शो किया है, hemoglobin आरबीसी निकल आता है. हीमोग्लोबिन को हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में, हीम ऑक्सीजनेज एक एंजाइम रहता है, राइट? हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में दैट हीमोग्लोबिन इज डिसोसिएटेड इनटू two parts, that is heme and globin, right? Globin is a protein again and globin is again utilized for new erythropoiesis. नए सेल्स बनाने में काम आ जाती है ग्लोबिन प्रोटीन, राइट? नए आरबीसीज बनाने में तो ग्लोबिन भी यूटिलाइज हो जाती है अगेन, राइट? ग्लोबिन is used again in the process of erythropoiesis. We are left out with heme. What happens with heme? Heme dissociate होता है फिर और हीम में से निकलता है बिलीवर्डिन एंड आयरन. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो हीम से क्या निकलता है, बिलीवर्डिन एंड आयरन. हीम जो है दैट इज अ टेट्रापायरोल रिंग. इस तरह की एक पायरोल रिंग होती है. दिस इज अ पायरोल, राइट? पायरोल स्ट्रक्चर एंड सेम काइंड के ऐसे 4 पायरोल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है? सेम काइंड के हैं ये चारों पायरोल स्ट्रक्चर्स, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं और इनके इन बिटवीन बाइंड रहता है आयरन. ओके, इनके इन बिटवीन क्या रहता है, दैट इज आयरन. तो जब ये डिसोसिएट होता है तो आयरन अलग हो जाता है और ये पायरोल रिंग अलग हो जाती है. तो आयरन बाहर डिसोसिएट हो गया, हमारे पास आयरन आ गया. आयरन इज अगेन यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसीज. और जो ये पायरोल रिंग जब ब्रेक डाउन होती है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू बिलीवर्डिन फॉर्म, राइट? ये पायरोल नहीं बनता, it is dissociated and it is converted into biliverdin form. And remember this pyrrole ring is total compound is known as protoporphyrin. This biliverdin is acted upon by biliverdin reductase and is converted into unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin is released into the circulation now. क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज अ फ्री कंपाउंड, राइट? छोटा सा कंपाउंड है, छोटा सा मटेरियल है, तो ये फ्रीली हमारी सर्कुलेशन में आ जाता है. अब क्योंकि बॉडी को सेंस है दैट दिस कंपाउंड इज पॉइजनस टू द बॉडी, तो ये क्या करती है, इसको एल्बुमिन से बाउंड कर देती है. अब एल्बुमिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ बाउंड होते ही ये जो मॉलिक्यूल है ये बड़े साइज का हो जाता है और ये हमारी किडनी से ही फिल्टर आउट नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन्स फिल्टर आउट नहीं होती हैं किडनी से, तो ये ऐसे ही सर्कुलेशन में घूमता है. फिर क्या करते हैं, जब ये कंपाउंड लीवर के पास आता है तो वहां पे उसके लीवर में हिपेटोसाइट्स में, जो हिपेटोसाइट्स की साइड टुवर्ड्स ब्लड सर्कुलेशन होती है, उस साइड क्या रहता है, लाइगेंडिन्स. लाइगेंडिन्स की एफिनिटी होती है टू बाइंड विद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. सो दे कंबाइन विद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीविंग द एल्बुमिन बिहाइंड इनसाइड द सर्कुलेशन. अब unconjugated bilirubin is now inside the hepatocyte. Here starts the hepatic phase. So this was hepatic uptake of bilirubin. अपटेक किया उसने लाइगेंडिन्स ने और अंदर कर लिया हेपेटोसाइट्स के. हेयर क्या होता है, जैसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अंदर जाता है, लीवर नोज दैट दिस इज पॉइजनस एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम नॉन पॉइजनस सबस्ट्रेट. तो बिलिरुबिन का क्या होता है, यहाँ पे लीवर में एंजाइम है हेपेटोसाइट्स में, दैट इज glucuronide transferase, which I have discussed with you earlier. In the presence of this enzyme, glucuronic acid, which is a highly polar substance, it is highly polar. ये जो substance है ये unconjugated bilirubin को किस में convert कर देता है, conjugated bilirubin में. तो bilirubin के साथ glucuronic acid combine कर जाता है and this process is called conjugation of bilirubin.
ओके, अब हिपेटोसाइट के दूसरी साइड की वॉल में एक प्रोटीन रहता है, दैट इज multi-drug resistant protein 2, MRP2. With the help of this protein, this conjugated bilirubin is thrown out of the cell into the glandular सिस्टम और फिर वो बाइल के साथ ड्रेन होके हमारे गट में आ जाता है और गट में आकर जब इलियम में पहुंचता है, कॉलोन में पहुंचता है, तो वहां पे जो बैक्टीरियाज हैं they act upon this conjugated bilirubin and convert it into glucuronic acid is released and is converted into urobilinogen. And most of the urobilinogen is converted into stercobilinogen, which provides a particular brown color to the fishes. And around 10% of the urobilinogen is taken up by the enterohepatic circulation. एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो है वहां से चला जाता है डायरेक्टली टू द लीवर सर्कुलेशन, है ना, लीवर सिस्टम के सर्कुलेशन में चला जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन में। और पोर्टल सर्कुलेशन से ऑब्वियस सी बात है, पोर्टल सर्कुलेशन में गया है तो वहां से या तो ये चला जाएगा, सर्कुलेशन में एंटर हो चुका है, ये चला जाएगा किडनीज में, वहां जाके फिल्टर हो जाएगा और वहां कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिन में, जो कि यूरिन को देता है येलो कलर, राइट, यूरोबिलिन में। और थोड़ा सा जो है वो फिर से हिपेटोसाइट्स जो हैं लाइगेंडिन्स की हेल्प से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इट अगेन गोज थ्रू द सेम प्रोसेस। So this is the basic bilirubin metabolism that goes inside. So there can be 4 basic causes of unconjugated bilirubinemia. First is increase in the bilirubin load. बिलिरुबिन ही ज्यादा बन रहा है कि लीवर उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रह रहा है बॉडी में एक्सेस अमाउंट में। या फिर देयर इज डैमेज और रिडक्शन टू द ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है वो इम्प्रॉपरली एक्ट कर रहा है, जिससे कि सारा अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, या तो बिल्कुल नहीं हो रहा या थोड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की पुलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। या देयर इज ब्लॉक टू ट्रांसफेरेज एंजाइम और देर इज रिडक्शन ऑफ बिलिरुबिन अपटेक बाय द लिवर सेल्स, या फिर अपटेक ही नहीं हो पा रहा, लाइगेंडिन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो दैट टाइम ऑल्सो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में रह जाएगा। एक टाइम आएगा जब वैसे तो एल्बुमिन के साथ बाउंड होके वो पॉइजनस नहीं रहता, लेकिन एक टाइम आएगा जब एल्बुमिन और बिलिरुबिन की रेशो खत्म हो जाएगी, एल्बुमिन कम पड़ जाएगा, बिलिरुबिन ज्यादा होगा, उस टाइम बिलिरुबिन फ्रीली घूमना शुरू करेगा, इट विल बी टॉक्सिक टू द बॉडी। अदर कॉजेज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया विल ऑल्सो बी देयर। For example, if MRP2 stops working, right? Previous slide में जैसे हमने देखा MRP2 if stops working, then conjugated bilirubin will not be released into the glandular system. और वैसे ही अगर बिलिरी जो हमारा पाथवे है, अगर वो पूरी पाथवे ही ब्लॉक हो जाता है, बाइल डक्ट, हिपेटिक डक्ट्स, राइट हिपेटिक, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट्स ये ब्लॉक हो जाती हैं, इन दैट केस ऑल्सो और ये ब्लॉक होंगी तो भी conjugated bilirubin रिलीज नहीं हो पाएगा and it will start leaking out, right? So all this will lead to jaundice. So basically अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में 2-3 फैक्टर्स हैं, बिकॉज बच्चे जो हैं वो फ्रॉम फीटल लाइफ दे आर गोइंग टू नॉर्मल लाइफ, राइट? तो बच्चों का जो लाइफ स्पैन है आरबीसीज का, दैट इज 90 days, रिमेंबर दिस, दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अडल्ट। सेकेंड थिंग, अब 90 days का लाइफ स्पैन है तो आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी तो बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, दिस इज ऑब्वियस, right? Second thing, बच्चों का liver is very immature liver. They have an immature liver, and because of immature liver, ligands are not properly working, so uptake is hampered. Enzymes are not properly working, so conjugation is hampered. And even there is sterile gut of the babies. Sterile gut bacteria are not working. So here, because of the presence of beta-glucuronidase, this conjugated bilirubin is again converted into unconjugated form, which is uptaken by the portal system and again goes into the pool of unconjugated bilirubin, thus increasing the unconjugated bilirubin levels. तो ये सारे causes हैं जो कि फिजियोलॉजिकली बच्चे में होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जॉन्डिस डेवलप होता है। So let's talk about what is neonatal jaundice then. So the jaundice which is observed during first week of life is neonatal jaundice. It can be of 2 types, physiological jaundice, pathological jaundice, right? Physiological jaundice is the jaundice which develops after 24 hours of birth and within 72 hours of birth, 24 से 72 घंटे के अंदर। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता है जो 24 घंटे के अंदर डेवलप हो जाता है जन्म लेने के बाद, और कुछ ऐसा भी जॉन्डिस होता है जो 72 आवर्स के बाद डेवलप होता है।
So there are multiple causes which aggravate this physiological jaundice. All these factors in one way or the other increase the RBC damage, right? And increased RBC damage will lead to increased bilirubin. Right? Polycythemia, there is formation of more RBCs. More will be the RBCs, more will be destruction, more will be the bilirubin level. Talking about pathological jaundice, in these conditions also there is inflammation of the cells, or there is damage to the RBCs, or there is defective formation of the enzyme which are required for the conjugation process, or there is improper shape of the RBCs which will lead to early death of the RBCs, leading to pathological jaundice. And similarly, some cases which lead to the inflammation of hepatocytes will lead to jaundice after 72 hours, including septicemia being the reason, neonatal hepatitis, breast milk jaundice, and metabolic diseases. We will talk about them later on, one by one, in detail. So things which we have to remember is first that jaundice in newborns rises in cephalocaudal fashion, means it rises from head, then face, then it involves trunk, then abdomen, then lower limbs and foot. ओके तो जब भी इसका जो फैशन होता है दैट इज ऑलवेज सिफेलोकॉडल, और जब ये डिमिनिश भी होता है, रिलीव भी होता है, तब भी ये रिवर्स ऑर्डर में रिलीव होता है. पहले पैरों से जाएगा, फिर लेग्स से, फिर एब्डोमेन से डिमिनिश होएगा, फिर चेस्ट से, देन फेस. फेस में सबसे पहले डेवलप होगा और सबसे लास्ट में ही जाएगा. तो इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड बनाया गया है, दैट इज क्रैमर्स डर्मल स्टेनिंग बिलिरुबिन, जो कि हम प्रैक्टिकली भी बहुत यूज करते हैं इन द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी इन द IPDs and OPD level. So here we have he has divided the body of a baby into 5 zones, right? 5 zones में divide किया है according to the concentration of the bilirubin. तो उन्होंने कहा कि अगर जो bilirubin है, या if the yellow staining is only above the clavicle area, above clavicle पे ही है, right? यहाँ clavicle bone होती है, इससे ऊपर ही है अगर, then it is zone 1 and it refers to a reference range of serum bilirubin around 4 to 6 mg per dl. And zone 2 involves chest and upper abdomen, indicating 6 to 8 mg per dl. Zone 3 thighs, lower abdomen and upper arm, indicating 8 to 12 mg per dl of serum bilirubin. Zone 4 lower legs and forearm, indicating 12 to 14 mg per dl of serum bilirubin. And zone 5 involves palms and soles also, indicating more than 15 mg per dl of serum bilirubin. And more than 15 mg is the critical range of serum bilirubin, right? So jaundice from deposition of indirect bilirubin is bright yellow. Jaundice, if it is direct bilirubin raised, that is conjugated bilirubin is raised, then mostly the cause is obstructive jaundice, and it has a greenish or muddy yellow cast. Baby will be lethargic, there will be poor feeding history. And if we ignore this condition, or if it is left untreated, then it will progress to acute bilirubin encephalopathy, that is known as kernicterus. That is that this unconjugated bilirubin toxic level or hyperbilirubinemia will cross the blood-brain barrier and will damage the nerve cells of the body, leading to a condition that is kernicterus. This was all regarding the general overview of the jaundice and metabolism of bilirubin. We will talk about physiological jaundice in our coming video. Till then, take care.